Hello students, good morning. Here I am Sandeep Bharti going to teach you part second of first chapter of history, the French Revolution. Next subtopic, France becomes a constitutional monarchy. So the National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. Its main objective was to limit the powers of monarch. These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions: the legislature, executive, and judiciary. This made France a constitutional monarchy. So it means फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया. फ्रांस एक बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. ओके. देन नेशनल असेंबली ने क्या किया, 1791 को संविधान का एक ड्राफ्ट बनाया. ठीक है. ड्राफ्ट मीन रफ प्लान. न्यू वर्ड्स फॉर यू. ड्राफ्ट मीन्स रफ प्लान. देन its main objective और मेन एम वॉज टू कंट्रोल द पावर ऑफ द मोनार्क. मतलब मोनार्क की जो पावर हैं उनको कंट्रोल करना. ठीक है. दिस पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन. मतलब इसका ये हुआ कि ये जो पावर, जो जैसे पहले पावर जो भी थी वो मोनार्क जो था वो हिमसेल्फ कंट्रोल ऑल द पावर, बट नाउ ऑल द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट वर डिवाइडेड. ओके. was not given to a one person but divided into three parts, three institution. They were legislature, executive and judiciary. मतलब वो एक legislature था, ठीक है, पार्ट, और दूसरा executive था और तीसरा judiciary था. legislature क्या होता है बच्चों? law making body. executive mean it is a branch of the government where laws are put into the order. And next one is judiciary, third branch of the government which deals with justice. okay. तो इसने क्या कर दिया, फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया. ठीक है. एज इट इज़ गिवन इन द फिगर 7. अब फिगर 7 क्या बता रहा है कि हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्कड. मतलब नया पॉलिटिकल सिस्टम कैसे उसने काम किया वहाँ पे फ्रांस में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद तैयार किया गया था. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दिस फिगर देयर वर judiciary, executive and legislature. Three separate parts were there. okay. So judiciary was controlled by judge at that time. Now it is also. Executive was controlled by king. Clear. And that legislature is a law making body. This national assembly consisted of 745 members, but they all members, okay, control the king. okay. And king had a veto power, means special power. So king had directly or indirectly, okay, interfered the matter of that national assembly. okay. And national assembly also control those ministers, group of ministers. okay. And that electors, if in the France at that time if you would become the elector, then you have to pay, you have that most payer of tax. मतलब आप ज़्यादा टैक्स अगर पे करोगे तो आप इलेक्टर बन सकते हो. तो इलेक्टर्स कितने थे वहाँ पे? 50,000. एंड दोज वर ओनली मैन. ओके. वुमेन वर नॉट that given that right, voting right. And there were two type of citizens there. okay. Active citizens and passive citizens. So active citizens ratio was number were that 28 millions. Sorry, active members population was 28 millions, and passive citizens okay, they had not voting rights, and their number were 3 millions, but they included men. okay. Both in active and passive. But women's, okay, children and youth below the 25 years had no voting right, as it is given in the picture. okay.
सो द पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, ये आपने इसको देखा. देन नेक्स्ट वन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था इसका, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ I mean to say that the Constitution of 1791 power to make new laws in the National Assembly, उसको एक power थी. Then which was indirectly elected, जो कि indirectly elected थे वहाँ पे, ठीक है. indirectly elected mean without voting system. Then that is citizens voted for a group of electors who in turn choose the assembly. It means the citizens which were indirectly elected, the citizens had voted for a group who turns to choose the assembly. Okay. Then only men above the 25 years of age who paid taxes equal to to at least 3 days of their labor wage were given the status of active citizens. It means the men who had who were of 25 years, okay, if they paid their 3 days wages as tax to the that assembly, so they had given voting rights and they were called, they were declared as active citizens, कि वो active citizen होंगे, ठीक है. that is they were entitled to vote, मतलब वो voting कर सकते हैं. then the remaining men and all women were classified as passive citizens if they were not able to pay the taxes as their on their 3 days wages to the assembly. They were not given voting rights. So to qualify an electors and then as a member of assembly, a man had belonging to highest bracket of taxpayer. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इलेक्टर्स बनना चाहते हो फ्रांस में, ठीक है, तो आप नेशनल असेंबली को आप बहुत ज़्यादा आपको टैक्स देने पड़ेंगे. देन यू वर गिवन दैट वोटिंग राइट्स एंड परमिशन टू बी एज एन इलेक्टर्स. Okay, this is this picture of clay tablets which was designed just after the constitutional monarchy of 1791. Okay, so these are here are the picture of two women's wing women. Okay, one woman is sitting in their corner. Okay, so this all, you know, this all means this is the personification of that laws, मतलब laws लिखे हुए थे इसमें, ठीक है, sorry. Then the constitution, okay, the constitution began with a declaration of right of men and citizen. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1791 का, उसने डिक्लेयर किया मैन और सिटीजन्स के जो राइट्स थे उसको डिक्लेयर किया. राइट सच एज राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ वर एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड inalienable rights, that is they belonged to each human beings by birth and could not be taken away. It was the duty to the state to protect each citizen's natural right. मतलब नेचुरल राइट्स बनाए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 ने, तो उनको प्रोटेक्ट करना किसकी जिम्मेवारी थी? स्टेट्स की, ठीक है, जो कि आपने पढ़ा, फ्रीडम टू स्पीच, बोलने का अधिकार, अपनी राय देने का अधिकार, ठीक है, equality before laws, etc. Okay, then so there is a picture of that Jean Paul Marat. he was the revolutionary journalist, मतलब एक पत्रकार थे, ठीक है. उन्होंने क्या किया, मतलब इस होल पैराग्राफ में ये बताया गया कि he opposed those he opposed the special privilege which was given to the rich people, and he felt that all the rights which were, all the power which were given to the rich people, okay, so they they had not that right, okay, to obey that particular things, to obey certain rules properly. Okay, so he also try to argue that laws, there was he also argued that how wealth influences the laws, ठीक है. He also
argued that that particular system was not in favor of that particular poor people. Okay, clear? So that particular laws okay only meant for the protected the rich people of the society. Okay, then so source C also declares some rights of men and citizens. Men and they are men are born and remain free and equal. मतलब ह्यूमन मैन जो है वो क्या है, मतलब उनका जन्म जो है वो क्या है, एक जन्म और जन्म जो है उनका वो फ्री है बिल्कुल, ठीक है, जन्म से वो फ्री हैं सॉरी, और वो उनको इक्वल राइट्स होने चाहिए, ठीक है। द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ द इज़ द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल राइट। मतलब जो भी पॉलिटिकल एसोसिएशन होगी तो उसका मेन राइट क्या होगा फ्रांस में, वो नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे, जो भी है, सच एज लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, रेजिस्टेंस, ऑपरेशन एक्सेट्रा। ओके, रेजिस्टेंस होता है विद्रोह करना, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा। ओके, एंड अगर सरकार की जो गलत नीति हैं अगर वो आप उनको पसंद नहीं कर रहे हो तो आप उनको क्या कर सकते हो, अपोज भी कर सकते हो, ठीक है। देन द सोर्स ऑफ द सॉवरेनिटी रिजाइड इन द नेशन। मतलब सॉवरेनिटी होना चाहिए, सॉवरन होना चाहिए। सॉवरन क्या होता है, सॉवरन मीन दैट अ पर्टिकुलर कंट्री रूल्ड इटसेल्फ। ओके, देन इंडिविजुअल मतलब जो भी वहाँ पे जो लोग रहेंगे एंड दे में एक्सरसाइज अथॉरिटी एंड दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल। ओके, तो मीन्स all the security given to the particular nation as well as its people. Then liberty consists of the power to do whatever is not injurious to other। मतलब लिबर्टी तब तक वहाँ तक सीमित होनी चाहिए कि वो जो है वो दूसरों को हार्म ना करें। लिबर्टी का मतलब ये नहीं कि लिबर्टी डजंट मीन्स टू ब्रेक द ग्लासेस द डोर ऑफ अदर्स। ओके, सो or to slap anybody without any reason. Okay, clear? Then the laws has the right to forbid only action that are injurious to the society। law मतलब laws जो है वो ऐसे बनने चाहिए, सेट ऑफ रूल्स ऐसे होने चाहिए जो कि सबके लिए बराबर हो और दूसरा कोई समाज में मतलब किसी को हानि ना हो उससे, ठीक है। देन लॉ इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल। लॉ जो है सबके लिए बराबर होने चाहिए। ऑल द सिटीजन हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन पर्सनैलिटी थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट। मतलब सभी नागरिकों को एक समान अधिकार मिलने चाहिए, उनको पार्टिसिपेशन की दैट परमिशन भी होनी चाहिए, ठीक है। नो मैन मे बी एक्यूज्ड अरेस्टेड और डिनाइड एक्सेप्टेड इन द केस डिटरमिन्ड बाय द लॉ। मतलब किसी को आपने अरेस्ट नहीं करना है। एक्यूज कौन होता है, जिसपे कि हमें क्या बोलते हैं, शक होता है, ठीक है, दोषी जो होता है, ठीक है। हम किसी को ऐसे दोषी को अरेस्ट नहीं करेंगे विदाउट एनी एविडेंस। ओके, और लॉस के मतलब लॉ बिना किसी प्रूफ के किसी को आप अरेस्ट नहीं कर सकते, किसी को कोई भी मतलब सज़ा नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सज़ा तब होनी चाहिए जब आप उसको प्रॉपर एग्ज़ामिन कर सकते हो और उसको प्रॉपर ढंग से उसको एग्ज़ामिन करके उसको मतलब इम्प्रिजन के लिए उसको भेज सकते हो। एवरी सिटीजन्स में स्पीक राइट एंड प्रिंट फ्रीली। मतलब सभी नागरिकों को ये अधिकार होना चाहिए कि बोलने का अधिकार होना चाहिए, लिखने का, पढ़ने का, ठीक है, सब कुछ होना चाहिए वहाँ पे, ये कहा गया था इस लॉ में। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स एंड फोर्स फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉमन टैक्स इज इंडिस्पेंसेबल। मतलब सरकार को चलाने के लिए, खर्चों को चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए कॉमन टैक्स होने चाहिए, ठीक है, उसमें कोई अलग नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी असेस्ड इक्वली ऑन द सिटीजन्स इन द प्रोपोर्शन टू देयर मीन्स। मतलब ये प्रॉपर असेस करना चाहिए, प्रॉपर चेक करना चाहिए इसके ऊपर। देन सिंस प्रॉपर्टी इज sacred and inviolable right, no one may be deprived। मतलब जो प्रॉपर्टी जो है, मतलब एक प्रॉपर्टी जो है हमारा एक सेक्रेड राइट है, ठीक है, उसको इक्वल होना चाहिए वो रिच और पुअर पीपल में। नो वन में बी डिप्राइव्ड मतलब किसी को उससे वंचित नहीं रखना चाहिए, ठीक है। देन लीगली एस्टेब्लिश्ड पब्लिक नेसेसिटी रिक्वायर्ड इट। मतलब इसके लिए एक प्रॉपर लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए। लीगल मतलब उसके लिए लॉ बनना चाहिए एक। इन दैट केस अ जस्ट कंपनसेशन मस्ट बी गिवन टू द
गिवन इन एडवांस, मतलब किसी को अगर लगता है कि किसी को कोई नुकसान हो रहा है तो वहाँ पे कॉम्पनसेशन, एक फाइनेंशियल हेल्प जो है सरकार की द्वारा उसको मिलनी चाहिए, ठीक है। ओके, so next subtopic, reading political symbols. So here the majority of men and women in 18th century could not read and write. So images and symbols were frequently used instead of printed words to communicate important ideas. The painting by Lee Barbier, okay, and the figure 8 uses many such symbols to convey the content of the Declaration of Rights. Let us try to read these symbols. It means in the 18th century, okay, in the Europe, many of the women could not read and write. So most of the symbols were used to convey the message to them about what is actually what was actually going on. Okay, so first symbol is a broken chain. So chain were used to fetter slaves. So what do you mean by fetters here? Restrict the freedom. Fetters mean restrict the freedom. Okay. So broken chain stand for the act of becoming free. It means that particular symbols tell us about that act of becoming free. Next, the bundle of roads and uh, faces. One road, it means this is a symbol. It means one road can easily broke, मतलब एक रोड जो है वो easily टूट सकती है, but not an entire bundle. It means strength is there, unity is strength. Okay, so it means the next one is the eye within a triangle radiating light, as it is given here. So the all saying I stands for knowledge. So this I stand for the knowledge. The rays of the sun will drive us the cloud of ignorance. मतलब ये जो रेज हैं ये हमें दूर रखेंगी अंधेरे से रोशनी की तरफ। मतलब इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे? लैक ऑफ नॉलेज, मतलब वो हमें नॉलेज देंगी, मतलब अंधेरे से रोशनी की तरफ। देन स्क्रिप्चर मीन द सिंबल ऑफ रॉयल पावर। जो बड़े बड़े जो रॉयल लोग होते थे ये उनकी एक सिंबल था उनके लिए। देन स्नेक बिटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। It means the symbol of eternity. What do you mean by eternity here? Eternity means unending time. Okay, as I have written here. A ring has neither beginning nor end, as it is given here. The next one, uh, red Firangian cap worn by the slave upon becoming free. It was worn by the slave in the France. Then blue, white and red. These are the national colors of France. So remember that. Then the winged women, personification of law. Here is a new word for you. Personification means the practice of showing a particular thing. As in India, if we talk about in India, so in India there is we are also personification of that laws, or personification of that ideas by showing the image of Bharat Mata. Okay, as in France, so they use this wing movement. Okay, this wing movement tell us about the laws. The laws are equal to all. Okay, then the law tablet. The law is same for all and all are equal before law, as it is given here. Okay, France abolish monarchy and becomes a republic. मतलब यहाँ पे इस सब टॉपिक का मीनिंग हुआ, जो फ्रांस जो था वो उसने मोनार्की को, एक राजा के रूल को ख़त्म करना चाहता था, और एक रिपब्लिक मतलब एक ऐसी कंट्री, आपके लिए एक न्यू टर्म है। रिपब्लिक मीन्स अ कंट्री वेयर हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड पर्सन एंड इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर द 5 years. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ। नाउ the situation of France continued to be tense during the following years, although
Louis XVI had signed the constitution. He entered into secret negotiation with the king of Prussia, ruler of other neighboring countries, too were worried by the developments in France and made plan to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. Thousands of volunteers thronged uh, from the provinces to join the army. They saw this as a war of the people against king and aristocracies all over Europe. Among the patriotic songs they sang was the Marseillaise, composed by poet uh, this Rath D Lysel. Okay, it was sung for the first time by volunteers from Marseilles as they marched into Paris, and so got its name. The Marseillaise is now the national anthem of France. So इट मीन्स अब फ्रांस में जो है वो आने वाले ईयर्स में एक तनाव की टेंस मीन तनाव डिप्रेशन जिसको बोलते हैं तनाव की एक स्थिति दैट उत्पन्न हो गई थी मतलब बन गई थी ठीक है देन लुइस 16 जो थे ही आल्सो साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो नया जो संविधान बना था उसके ऊपर उसने हस्ताक्षर किए थे ठीक है देन ही एंटर इन टू सीक्रेट मतलब उसने बाद में क्या किया एक सीक्रेट डिस्कशन किया किसके साथ प्रूशिया के राजा के साथ देन अब व्हाट वाज दैट सीक्रेट डिस्कशन देन ही वाज नोन ओके ही न्यू सॉरी देन रूलर्स ऑफ अदर कंट्री मतलब जो नेबरिंग कंट्रीज के जो एम्परर थे एम्परर ऑफ नेबरिंग कंट्रीज वर intention of increased events in France. Okay, so they wanted to make a plan to send their troops to reduce that events in summer of 1789 as it is given here. Then so explanation is there. Then National Assembly. Okay, National Assembly that voted in the 1792 voted in the 1792 and declare war against that Prussia and ऑस्ट्रिया के खिलाफ उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी देन अब ये वॉलंटियर्स क्या होता है वॉलंटियर्स यू कैन पेन डाउन राइट डाउन दिस वॉलंटियर होता है बच्चों अ पर्सन हु फ्रीली ऑफर्स टू डू समथिंग मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि हर टाइम में काम करने के लिए तैयार रहता है without expecting any financial help okay ठीक है you will be the volunteer if you have the quality of volunteer then so they saw हाँ this I have read sorry तो volunteer जो थे उन्होंने सेना में शामिल होने के लिए एक प्रोविंस से जोर लगाया ठीक है उसके बाद जो है अब उन्होंने जो है वॉलंटियर्स ने यूरोप के राजाओं मतलब इसको देखा एक रूप में एक इस सिचुएशन को देखा इसको इस रूप में कि ये जो है दिस इज़ द वॉर अगेंस्ट मतलब एक एक युद्ध चला हुआ है राजाओं के खिलाफ यूरोप में और एक एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ एरिस्टोक्रेसी मतलब अमीर लोगों के खिलाफ एक युद्ध के रूप में इन्होंने देखा वॉलंटियर्स ने तो पैट्रियोटिक सॉन्ग जो था मर्सेलाइज ओके मर्सेलाइज एक नेशनल सॉन्ग था जैसे हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है वंदे मातरम ओके तो मर्सेलाइज एक नेशनल सॉन्ग था पैट्रियोटिक सॉन्ग था ठीक है सॉरी पैट्रियोटिक सॉन्ग था ठीक है तो उसको किसने लिखा था रथ डी लाइसल्स ने ठीक है अब पैट्रियोटिक सॉन्ग का थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको पैट्रियोटिक सॉन्ग जो होते हैं वो देशभक्ति गीत होते हैं जैसे एक छोटा सा गीत गाऊँगा आपके सामने मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द पैट्रियोटिक सॉन्ग तो ये भी मर्सेलाइज एक पैट्रियोटिक सॉन्ग था ठीक है
जब इसको मतलब जो वहाँ के जो सोल्जर थे उन्होंने इसको जब मार्च किया तो इसको एक एक पहचान मिल गई इसको, ठीक है। एंड नाउ एंड एट दैट टाइम इट वाज चेंज इनटू दैट नेशनल एंथम ऑफ द फ्रांस। सॉरी, जैसे हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, ओके, कंपोज बाय द रविंद्रनाथ टैगोर। अंडरस्टूड? Okay, the revolutionary wars brought losses and economic difficulties to the people. While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning and living, after their families. Okay. सो इसका मतलब कि और जो रेवोल्यूशनरी जो वॉर थी ना, इसने लोगों के नुकसान और आर्थिक जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको सामने लेके आए। ओके, देन तो जब मैन जो थे वो मोर्चों पे जो मतलब बंकर्स पे वो लड़ते थे, तो महिलाएं क्या करती थी, जो वुमेन जो थी वो क्या करती थी, अपने परिवार की देखभाल करती थी और उनके लिए रोजी रोटी कमाने के लिए कार्यों में वो क्या करती थी, कार्यों में उनको एक प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। देन जो large section of the population were convinced that the revolution had to be carried further, as the constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of the society। इसका मतलब क्या हुआ, तो बहुत बड़े जनसंख्या का जो एक हिस्सा था उसको एक यकीन था कि रेवोल्यूशन के थ्रू ही हम लोग चेंजेस ला सकते हैं फ्रांस में, क्योंकि जो 1791 का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सिर्फ अमीर लोगों को ही स्पेशल राइट्स दिए थे, ठीक है। देन पॉलिटिकल क्लब बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर द पीपल हु विश्ड टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान्स देयर ओवर फॉर्म ऑफ एक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पॉलिटिकल क्लब जो थे वो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन गए थे, जो जहाँ पे कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी उनकी वो डिस्कशन होती थी, ठीक है। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब वाज दैट ऑफ जैकोबिन्स। अब ये जैकोबिन्स आपके लिए न्यू वर्ड है। जैकोबिन क्या था, एक पॉलिटिकल क्लब था, ठीक है, जिसका ये लीडर होता था, इसको शुरू किया था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, जो कि आप आगे पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है। तो पॉपुलर क्लब था ये, ठीक है। देन विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट सेंट जैकोब इन पेरिस। मतलब उसको एक नाम मिला था, एक सक्सेसफुल जैकोब, मतलब एक क्या था, पेरिस में एक स्कॉट जैकब थे जो कि एक पूर्व कॉन्वेंट के थे। कॉन्वेंट से इसका नाम जो है, इसको पॉपुलर मतलब इसकी जो पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ गई, ठीक है। देन women too had women too who had been active throughout this period formed their own club। section 4 of this chapter will tell you more about their activities and demand। मतलब वुमेन जो थी ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पीरियड में मतलब अपने जो एफर्ट्स थे उसको कंटिन्यू किया और अपने क्लब्स की फॉर्मेशन करती चली गई ताकि फ्रीडम ली जा सके अपर सेक्शन से। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर सेक्शन 4 जो है सॉरी, आप बहुत कुछ बताएगा कि वुमेन की जो डिमांड्स क्या थी, उनकी एक्टिविटीज़ क्या थी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ओके, द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रॉस्पर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो मेंबर जो थे जैकोबिन क्लब के, वो एक लेस प्रॉस्पर सेक्शन, मतलब एक गरीब वर्ग से रिलेट करते थे। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर, आर्टिशियन सच एज शू मेकर, पेस्ट्री कुक, वॉच मेकर, प्रिंटर। मतलब उनका जो ग्रुप था उसमें दुकानदार थे, कारीगर लोग थे, ठीक है, जूते बनाने वाले थे, ठीक है, पेस्ट्री कुक वाले थे, ठीक है, घड़ियाँ बनाने वाले थे और प्रिंटर्स थे, ठीक है। एज वेल एज सर्वेंट एंड डेली वेज वर्कर, मतलब कुछ नौकर और जो डेली वेज पे जो काम करते हैं, ठीक है। एंड देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉबस्पायर। ओके, so I am also showing you a picture of Maximilian Robespierre, how he was look like. A large group among the Jacobin decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dockyard worker। मतलब जो जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग लंबे
मतलब पजामे डालेंगे, पजामे की तरह पैंट डालेंगे, ठीक है। और जो कि ड्रेस जो है वो सिमिलर होगी जो कि डॉक वर्कर्स की ड्रेस जैसे उनकी ड्रेस होती है वैसी हमारी ड्रेस भी होगी, ठीक है। दिस वॉज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली नोबल्स वैसे वाइज पीपल भी होते हैं, और इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, रईस लोग जो होते हैं, रईस लोग जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये चाहते थे कि ये जो हम नई ड्रेस इंट्रोड्यूस करेंगे अपनी ग्रुप के लिए, तो वो बिल्कुल रईस लोगों से बिल्कुल डिफरेंट होगी और हमारी एक अलग से पहचान बनेगी। सो दिस इज़ अ न्यू टर्म फॉर यू, कन्वेंट बिल्डिंग बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी डिवोटेड टू अ रिलीजियस लाइफ। एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे कि धार्मिक एक्टिविटीज़ मतलब इंट्रोड्यूस होती हैं, चलती हैं, वहाँ पे कंटिन्यू होती हैं, जैसे मोनेस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, ठीक है। इन द monasteries there are some religious work is going on, okay, related to the Buddhism, okay. It's a sacred place, clear. So similar to that, convent is also there, okay. Then this is the image of the women, okay. Then it was the way to proclaim the end of the power wielding by the weaker wearer of knee breeches। मतलब इसने उसको एक ख़त्म किया, इस चीज़ को ख़त्म किया कि जो महिलाएं पहले जो वुमेन जो हैं वो घुटनों के बीच के मतलब घुटनों के नीचे पहनने वाले जो ड्रेसेस होती थी उसको उन्होंने अबॉलिश किया और उस पर्टिकुलर पावर को फिनिश किया, और अंत में एक डेक्लेरेशन की कि जैकोबिन जो हैं वो क्या करेंगे, इनको जो है जैकोबिन जो है अपनी नई ड्रेस के लिए जाने जाएंगे, ठीक है, एज इट इज़ गिवन हियर। देन since Pluto's men were addition in red cap that symbolized liberty, women however were not allowed to do so। मतलब जो सेंस क्लूटोज जो थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, उनका एक पहचान क्या थी कि उन्होंने एक लाल कलर की एक टोपी पहनी हुई थी, ठीक है, जो कि एक सिंबलाइज करती थी स्वतंत्रता को, लिबर्टी को। तो वुमेन को इसका अधिकार नहीं था, राइट नहीं था, ठीक है, अंडरस्टूड। देन इन द समर 1792 जैकोबिन प्लान्ड and insurrection of a large number of Persian who were angered by the short supply and high price of food। तो एक इंसरेक्शन प्लानिंग की उन्होंने, ठीक है, जैकोबिन्स ने, किसने की, जैकोबिन्स ने एक इंसरेक्शन प्लानिंग की जिसमें कि उन्होंने उन बातों को डिस्कस किया जिससे कि मतलब फ्रांस में जो है वो फूड की जो प्राइस थे वो बढ़ रहे थे, ठीक है। देन ऑन द मॉर्निंग ऑफ द अगस्त 10th दे स्टॉर्म द पैलेस एंड Tuileries massacred the king guard and held the king himself as हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर। मतलब 10 अगस्त की सुबह को उन्होंने क्या किया, टिलरी एक जगह थी, एज इट इज़ गिवन हियर, टिलरी की जगह थी, इसके महल पे धावा बोल दिया उन्होंने, अटैक कर दिया, ठीक है, और राजा के पहरेदार जो थे उनको मतलब उनको मार दिया और कई घंटों तक राजा को बंदी बना के रखा, ठीक है। देन इलेक्शंस वर हेल्ड, उसके बाद चुनाव हुए, ठीक है, क्लियर। फ्रॉम नाउ ऑन all men 20 years and above regardless of wealth got the right to vote। अब 21 साल से ज़्यादा 21 साल और इससे अधिक के जो एज के जो लोग थे, पुरुष जो थे, उनको बिना किसी प्रॉपर्टी के वोटिंग राइट मिला, ठीक है। देन द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड कन्वेंशन। जो इलेक्टेड असेंबली थी उसको क्या बोलते थे, कन्वेंशन, एज आई डिस्कस अर्लियर, okay, in the previous paragraph। on 21 September 1792 it abolished the monarchy and declared France republic। मतलब 21 सितंबर 1792 को इस कन्वेंशन ने क्या किया, ठीक है, फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया, एक मोनार्की को ख़त्म किया और फ्रांस को डिक्लेयर किया एक रिपब्लिक कंट्री। एज यू नो, रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द कंट्री, ठीक है।
एंड इलेक्शंस आर ऑलवेज हेल्ड आफ्टर द 5 ईयर, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिपब्लिक, ठीक है। आप इसको भी अंडरलाइन करके लिख सकते हो, ठीक है। देन देर इज़ अ देर इज़ नो हेरिडेटरी मोनार्की, मतलब अब कोई वंशागत जो है वो राजा नहीं रहा वहाँ पे। यू कैन ट्राई टू फाइंड आउट about some other countries that are republican and investigate when and how they became so, इसको आपने फाइंड आउट करना है। लुइस 16 वॉज सेंटेंस टू द, लुइस 16 को मतलब मारा गया, ठीक है, ठीक है। ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूट क्या होता है? टू पुट टू डेथ। एग्जीक्यूट मीन टू पुट टू डेथ, उनको मार दिया गया, ठीक है, बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज गुलेटाइन। गुलेटाइन एक डिवाइस होती है, इसकी छोटी सी पिक्चर बनाऊंगा मैं। एक ऐसे 2 शार्पी ऐसे पोल होते हैं आयरन के, ठीक है, ठीक है। दिस इज अ बेस, ठीक है, एंड दिस इज लुक लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे एक शार्पी ब्लेड होता है, ठीक है। दिस इज अ नेक बेस, इसको क्या बोलते हैं? नेक बेस। और ये पोल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो प्रिजन का गला फसाया जाता है, और एक यहाँ पे ऊपर शार्पी ब्लेड होता है, शार्पी ब्लेड। तो इसको यूज़ करते थे टू कट द हेड ऑफ द प्रिजनर, तो उसको क्या बोलते थे? गुलेटाइन, ओके। तो उससे उनको मार दिया गया, ठीक है। देन द क्वीन मैरिया एंटोनो, जो कि उनकी वाइफ थी लुइस 16 की, मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, मतलब सेम मारिया एंटोनियो को भी मारा गया बाद में, ठीक है। तो इससे क्या हो गया? देयर वॉज द एंड ऑफ द लुइस 16। सो here I am going to stop this second part of first chapter of history 9th class. So hope you understood it well. So now I am giving you exercise. So exercise of the chapter, so you can do these questions in the fair copy. Thank you very much.